ठीक है, ओके ओके। स्क्रीन सभी को विजुअल है? स्क्रीन सभी को विजुअल है? यस सर। ओके फाइन। स्टेट मॉडल हम 3 मेथड्स के अकॉर्डिंग ऑब्टेन कर सकते हैं। फर्स्ट फिजिकल वेरिएबल मेथड, सेकेंड फेज वेरिएबल मेथड, थर्ड कैनोनिकल वेरिएबल मेथड। ओके, physical variable method already we have seen. Okay, and one thing you can note, for electrical system we use physical variable method. If we have electrical system and we want a state model for the electrical system, in this case we use physical variable method. Okay, physical variable method में current through an inductor and voltage across a capacitor are taken as state variables. Okay, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि फिजिकल वेरिएबल मेथड में स्टेट वेरिएबल्स क्या होंगे, यू कैन से फर्स्ट करंट थ्रू एन इंडक्टर, सेकेंड वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर. Fine. Okay, so one numerical for physical variable method already we have seen, okay, in previous class. So let us see one more question so that you can easily understand how we can define a state model for the electrical system using the physical variable method. So note down the question: obtain the state equation for the zero input network shown in figure. Obtain the state equation. इसमें स्टेट मॉडल नहीं पूछा गया, केवल स्टेट इक्वेशन पूछी गई है. स्टेट मॉडल मींस a combination of state equation and output equation. Okay, already I told you in previous class. So here we want to obtain the state equation. Obtain the state equation for the zero input network, for the zero input network shown in figure. Shown in a figure. So let us see. First element we have resistor, second element we have inductor, third element we have capacitor. Fine. Okay, let us define current through a capacitor IC and voltage across the capacitor, suppose VC. Let us define current through an inductor IL and voltage across the inductor, suppose VL. Okay, let us define current through a resistor, suppose IR, and voltage across the resistor, suppose VR. फाइन. हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन है, हमें स्टेट इक्वेशन डिफाइन करनी है विद द हेल्प ऑफ फिजिकल वेरिएबल मेथड. ओके, स्टेट इक्वेशन, यू नो व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ स्टेट इक्वेशन? What is the general form of state equation? Any idea? What is the state equation? X is equals to AX plus No, x dot. X dot. X dot equal to AX of t plus B U of t. Fine. Okay. X of t means state variable. Okay. X dot t means derivative of state variable. X of t means state variable. U of t means input signal. Okay, so this is my state equation in general form. What is output equation? What is output equation? Okay, y of t equal to C x of t plus d u of t. Okay, so first is my state equation, second is output equation. Combinedly both will define state model. Combinedly both will define state model. हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे स्टेट मॉडल पूछ लिया जाए.
Okay, so with the help of state equation and output equation, we can define state model. Okay, done. हमें यहाँ पर केवल state equation define करनी है. So any idea how we can define state equation? और question में input नहीं है. Okay, question में आपको input given नहीं है. That's why according to given electrical circuit, we can say u of t equal to 0. That's why state equation becomes x dot equal to ax of t. Fine. According to the circuit, we don't have any input for the circuit. That's why state equation becomes x dot equal to ax of t. Fine. अब यहाँ पर हमें सबसे पहले स्टेट वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं. तो कितने स्टेट वेरिएबल्स होंगे? एनी आइडिया हाउ मेनी स्टेट वेरिएबल्स वी हैव फॉर द गिवन सर्किट? कितने स्टेट वेरिएबल्स हम डिफाइन कर सकते हैं सर्किट के लिए? 2 या 3 या 4? 2. कौन कौन से होंगे? ओके, 2 राइट. ओके, कौन कौन से होंगे स्टेट वेरिएबल्स? कैपेसिटर वोल्टेज और इंडक्टर करंट. Right, capacitor voltage and inductor current, or you can say voltage across the capacitor VC and current through an inductor IL. So here we have two state variables. First IL. Okay, अब IL it's okay. According to the circuit we have IL, but आपको state equation के according state variable क्या लिखना पड़ेगा? x1t. सेकेंड स्टेट वेरिएबल क्या होगा? वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर VC. ओके, VC we have second state variable, so you can write x2t. Okay, so here we have two state variables. That's why we have two state equations. फर्स्ट स्टेट इक्वेशन होगी x1 डॉट के लिए, सेकेंड स्टेट इक्वेशन होगी x2 डॉट के लिए. फाइन. फर्स्ट स्टेट इक्वेशन होगी x1 डॉट के लिए, सेकेंड स्टेट इक्वेशन होगी x2 डॉट के लिए. ओके, तो फर्स्ट स्टेट इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं? एनी आइडिया? फर्स्ट स्टेट इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं? एनी आइडिया? ओके, तीनों एलिमेंट्स किस तरीके से कनेक्टेड हैं? पैरेलल और सीरीज. तीनों एलिमेंट्स किस तरीके से कनेक्टेड हैं? पैरेलल वे में कनेक्टेड है. सो वी कैन से पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी. सो फ्रॉम द सर्किट वी कैन राइट VL इक्वल टू VC. यहाँ हमने BR इक्वल टू BL क्यों नहीं लिखा या BR इक्वल टू BC क्यों नहीं लिखा? बिकॉज हमने स्टेट वेरिएबल एज्यूम किया हुआ है IL को और VC को. दैट्स व्हाई हियर I am writing BL equal to BC. So what is the value of voltage across the inductor? क्या लिखेंगे हम जनरल वैल्यू को? BL की वैल्यू कितनी होगी? L कितना? dy/dt of IL. यस और नो? BC आप सेम रहने दीजिए बिकॉज आपने BC को स्टेट वेरिएबल एज्यूम किया है. BL को आपने स्टेट वेरिएबल एज्यूम नहीं किया था, आपने IL को स्टेट वेरिएबल एज्यूम किया था. दैट्स व्हाई हमने BL की वैल्यू लिख ली. ओके, अब यहां से आप dIL/dt कितना लिख सकते हैं? BC/L. आपने IL एज्यूम किया है x1t. ओके, so we have d/dt of x1t. You can write x1 dot. फाइन. ओके, इक्वल टू VC आपने एज्यूम किया था x2, तो यू कैन राइट x2 over L. ओके, फाइन. सो दिस इज माय फर्स्ट स्टेट इक्वेशन. एक बार प्लीज माइक किसी का ऑन है? माइक प्लीज आप म्यूट करेंगे? किसका माइक ऑन है? नितिन.
ओके फाइन, ठीक है, इतना सबको समझ में आता है, यस और नो? तो आपको जो स्टेट इक्वेशन लिखनी है, आपको जो स्टेट इक्वेशन लिखनी है वो किसके लिए लिखनी है? डेरिवेटिव ऑफ स्टेट वेरिएबल। और उसमें कौन कौन से टर्म्स होंगे? उसमें स्टेट वेरिएबल्स ही होंगे, या तो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स मींस रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर राइट हैंड साइड में, या फिर स्टेट वेरिएबल्स होंगे, मे बी x1 x2, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द numerical or depending upon the electrical circuit. So here we have first state equation, x1 dot equal to x2 over L. So this is my first state equation. इतना क्लियर है सबको? अब आपको सेकेंड स्टेट इक्वेशन लिखनी है, तो कौन बताएगा कि हम सेकेंड स्टेट इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? सेकेंड स्टेट इक्वेशन मींस वी वांट टू राइट x2 डॉट अकॉर्डिंग टू x1t and x2t. Okay, we want to write x2 dot according to x1t and x2t. So any idea how we can write a second state equation? Okay, second state equation के लिए आपको पता है कि here we have node A. तो node A पर आप KCL अप्लाई करिए। जब आप नोड A पर KCL अप्लाई करेंगे, we have IR प्लस IL प्लस IC इक्वल टू 0, यस और नो? जब आप नोड A पर KCL अप्लाई करेंगे, इक्वेशन क्या मिलेगी? अकॉर्डिंग टू KCL एट नोड A वी हैव इक्वेशन IR प्लस IL प्लस IC इक्वल टू 0। ओके फाइन, आपको लिखना है सेकेंड स्टेट इक्वेशन x2 डॉट के लिए। x2 आपने एज्यूम किया है Vc, इसका मतलब आप IC को लिख सकते हैं Vc के अकॉर्डिंग। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IC? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू अ कैपेसिटर? IC कितना होता है? C dV by dt. So here we have C dVc by dt इक्वल टू माइनस IR माइनस IL। इतना ठीक है, यस और नो? जल्दी से बताइए, इतना ठीक है, यस और नो? यस सर। ठीक, अब चेंज किसको करना है? IL को तो हमने स्टेट वेरिएबल एज्यूम किया है, तो IL को हम x1 लिख सकते हैं, बट IR को हमने स्टेट वेरिएबल एज्यूम नहीं किया है, तो IR को चेंज करना पड़ेगा। IR की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? According to Ohm's law, I means current through the resistor. So we can write IR equal to कितना? VR over capital R. Fine, yes or no? I equal to V by R. So here we can write I subscript R equal to V subscript R over R. ठीक, आपको पता है तीनों एलिमेंट्स पैरेलल वे में कनेक्टेड हैं, सो VR को हम VC भी लिख सकते हैं, बिकॉज हमने VR को स्टेट वेरिएबल एज्यूम नहीं किया है। ओके, और हमारी स्टेट इक्वेशन स्टेट वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो हम VR को क्या लिख सकते हैं? VC, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। सो वी हैव VC बाई R। ओके डन, इतना ठीक है, यस और नो? सो लेट अस पुट वैल्यू ऑफ IR एज VC बाई R इन इक्वेशन। ओके, सो वी हैव इक्वेशन C dVc by dt इक्वल टू माइनस VC by R माइनस IL, यस और नो? इतना ठीक है? ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन वी कैन राइट dVc by dt इक्वल टू माइनस VC by RC माइनस IL by C। अब जो आपने अजम्पशन किया है उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन को मॉडिफाई कर लीजिए। VC था x2t, तो वी हैव डेरिवेटिव ऑफ x2t, यू कैन राइट x2 डॉट इक्वल टू VC आपने एज्यूम किया था x2, सो वी हैव माइनस x2 बाई RC। IL आपने एज्यूम किया था x1, सो वी हैव माइनस x1 बाई C। Okay, so this is my second state equation. Okay, this is my second state equation.
और हमेशा याद रखना है कि जो स्टेट इक्वेशन होगी वो हमेशा डेरिवेटिव के लिए लिखना है अकॉर्डिंग टू स्टेट वेरिएबल्स। लेफ्ट हैंड साइड में स्टेट वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा, राइट हैंड साइड में स्टेट वेरिएबल्स होंगे जो आपने एज्यूम किए हैं, मे बी x1 x2 और x3। यहाँ पर दो ही थे, दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टेट इक्वेशंस, फर्स्ट फॉर x1 डॉट इक्वल टू, सेकंड फॉर x2 डॉट इक्वल टू। ओके, सो फर्स्ट विल डिफाइन स्टेट इक्वेशन, सेकंड विल डिफाइन स्टेट इक्वेशन। ओके, दोनों इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी हैव स्टेट इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म से एडवांटेज क्या है, आगे जब मैं आपको ट्रांसफर फंक्शन बताऊंगा कैलकुलेट करना, तो आप ट्रांसफर फंक्शन मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स डी के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। दैट्स वाई जितनी भी स्टेट इक्वेशंस आएंगी आप स्टेट इक्वेशंस के अकॉर्डिंग स्टेट इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टेट इक्वेशन को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ओके, फर्स्ट था x1 डॉट के लिए, सो वी हैव मैट्रिक्स ऑफ साइज 2 क्रॉस 1, फर्स्ट एलिमेंट x1 डॉट, सेकेंड एलिमेंट x2 डॉट, डन। ओके, इक्वल टू दो वेरिएबल्स हैं, फर्स्ट वेरिएबल क्या है x1t, सेकेंड वेरिएबल क्या है x2t। It means again we have matrix of size 2 cross 1. Okay, first element x1t, second element x2t. Okay, और आपको रिजल्ट में 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स चाहिए। ओके, इसका मतलब हुआ जो मैट्रिक्स A होगी उसका साइज कितना होगा 2 क्रॉस 2। डन। ओके, अब फर्स्ट इक्वेशन से x1t का कोफिशिएंट 0 है, फर्स्ट इक्वेशन से x2t का कोफिशिएंट कितना है 1/l। ओके, फर्स्ट रो कंप्लीट फॉर मैट्रिक्स A। सेकेंड इक्वेशन से x1t का कोफिशिएंट कितना है 1 माइनस 1/c। x2t का कोफिशिएंट कितना है माइनस 1/rc। ओके, सो सेकेंड रो कंप्लीटेड। फाइन, ut नहीं है। ओके, आपको मैंने पहले भी बोला था ut नहीं है, इट मीन्स मैट्रिक्स भी 0 होगी। ओके, ut नहीं है, ut आपका 0 था। ओके, सो दिस इज माई स्टेट इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। आपसे मैट्रिक्स ए की वैल्यू पूछ सकता है या फिर आपसे स्टेट इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में भी पूछ सकता है। आपको ऑप्शंस दिए होंगे ABCD, उसके अकॉर्डिंग आपसे स्टेट इक्वेशन भी पूछ सकता है, आउटपुट इक्वेशन भी पूछ सकता है, मैट्रिक्स ए भी पूछ सकता है, मे बी मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स डी भी पूछ सकता है। ओके, सो दिस इज माय स्टेट इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। इतना क्लियर है सबको? जल्दी से बताइए। दिस इज माय स्टेट इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो दो न्यूमेरिकल सफिशिएंट हैं। ठीक, अब मैंने बोला था कि स्टेट, हाँ जी, इसका मैट्रिक्स सी भी बता दीजिए, सी कैसे लिखा? हाँ, मैट्रिक्स सी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आउटपुट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अगर आप सर्किट को ध्यान से देखो तो आउटपुट वेरिएबल बताओ, सर्किट को देख के, सर्किट को देखकर बताओ आउटपुट वेरिएबल क्या है। वोल्टेज अक्रॉस दी, हाँ राइट, वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर VC, राइट, VCT। और हम स्टेट मॉडल में आउटपुट को लिखते हैं y ऑफ t से। डन, तो y ऑफ t होगा VCT, लेकिन VCT आपने एज्यूम किया है स्टेट वेरिएबल x2t, दैट्स व्हाई वी हैव आउटपुट इक्वेशन y ऑफ t इक्वल टू x2t। डन, सो दिस इज माय आउटपुट इक्वेशन। इसको आप मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सो y ऑफ t इक्वल टू, ठीक है, मैट्रिक्स C क्या होगा, रो मैट्रिक्स। क्यों? बिकॉज जो वेरिएबल वाली मैट्रिक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स है, उसका साइज 2 क्रॉस 1 है, राइट, और उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे x1t, x2t। आउटपुट इक्वेशन में x1t नहीं है, इट मींस कोफिशिएंट 0, x2t का कोफिशिएंट 1। ओके, तो मैट्रिक्स C की वैल्यू कितनी होगी 0 1। So this is my matrix C.
और मैट्रिक्स डी आपका 0 रहेगा बिकॉज क्योंकि यूटी नहीं है। तो मैट्रिक्स बी 0 है, मैट्रिक्स डी 0 है, मैट्रिक्स ए की वैल्यू मिलेगी और आपको मैट्रिक्स सी की वैल्यू मिलेगी। तो अगर आपको मैट्रिक्स ए चाहिए, मैट्रिक्स डी चाहिए, वी कैन डिफाइन विद द हेल्प ऑफ स्टेट इक्वेशन। अगर आपको मैट्रिक्स सी चाहिए, मैट्रिक्स डी चाहिए, यू कैन डिफाइन विद द हेल्प ऑफ आउटपुट इक्वेशन। ओके, और जब तक आप किसी सर्किट को या किसी ट्रांसफर फंक्शन को या फिर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टेट मॉडल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक उसका ट्रांसफर फंक्शन भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये तो आपका फर्स्ट स्टेप है कि हम किसी भी सिस्टम के अकॉर्डिंग स्टेट मॉडल कैसे डिफाइन करेंगे। अगला स्टेप होगा कि हम स्टेट मॉडल से ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, डन, इतना क्लियर है सबको? आपको मैंने कल बताया था कि स्टेट स्पेस एनालिसिस का मेन डिसएडवांटेज क्या था। स्टेट स्पेस टेक्निक यूनिक नहीं थी। यूनिक क्यों नहीं है? अगर यहां पर मैं करंट्स को अपोजिट कर दूं या करंट्स को मैं रिवर्स कर दूं, तो जैसे ही आप करंट को रिवर्स करेंगे, वी हैव डिफरेंट स्टेट स्पेस मॉडल। ओके, दैट्स व्हाई वी कैन से स्टेट स्पेस अप्रोच इज नॉट यूनिक। ओके, दिस इज मेन ड्रॉबैक ऑफ द स्टेट वेरिएबल एनालिसिस अप्रोच। ओके, हो सकता है कि अगर आप अजम्पशन चेंज कर दें तो स्टेट मॉडल चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए स्टेट मॉडल यूनिक नहीं है, ये इसका मेन डिसएडवांटेज था। ठीक है, डन, इतना क्लियर है? स्टेट मॉडल के लिए फिजिकल वेरिएबल मेथड सभी को क्लियर है? यस और नो? So let us see state model using phase variable method. Let us see state model using a phase variable method. Using a phase variable method. और ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है कि फिजिकल वेरिएबल मेथड आप क्यों यूज करते हैं। ओके, हम फिजिकल वेरिएबल मेथड यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए स्टेट मॉडल डिफाइन करने के लिए। फेज वेरिएबल मेथड हम कहाँ यूज करते हैं? अगर आपको सिस्टम के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो या फिर सिस्टम के लिए आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन हो, उस केस में हम स्टेट मॉडल डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फेज वेरिएबल मेथड। ओके, फेज वेरिएबल मेथड। तो फेज वेरिएबल मेथड में आपको क्या करना है, जो आउटपुट वेरिएबल होगा उसको फर्स्ट स्टेट वेरिएबल एज्यूम करना है। ओके, जो आउटपुट वेरिएबल होगा उसको फर्स्ट स्टेट वेरिएबल एज्यूम करना है। आफ्टर दैट आउटपुट के डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट स्टेट वेरिएबल एज्यूम करेंगे। फेज वेरिएबल मेथड में डिफरेंशियल इक्वेशन में या ट्रांसफर फंक्शन में जो आउटपुट वेरिएबल होगा उसको फर्स्ट स्टेट वेरिएबल एज्यूम करना है। ओके, आउटपुट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव होगा उसको नेक्स्ट स्टेट वेरिएबल एज्यूम करना है। ओके, डन, सबको क्लियर है? समझ में आ गया? यस और नो? सो लेट अस सी state model using phase variable method for differential equation. So let us see one example. We have differential equation. Okay, it is given by third derivative of y of t, okay, plus 6 second derivative of y of t, okay, plus 5 first derivative of y of t, plus y of t equal to ut. Okay, obtain the phase variable state model for a given system. Obtain the state model using phase variable method for a given system described by the differential equation. Obtain the state model
using phase variable method for a given system described by the differential equation. ओके, इतना ठीक है? सभी ने नोट कर लिया? सभी ने नोट कर लिया? और एक ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान से समझेंगे, राइट? क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक ही तरीके से होने हैं, तो आपको मैं ऐसा नहीं कि एक और बताऊंगा, तो कोशिश करेंगे कि एक से ही सबको समझ में आ जाए। सभी ने नोट कर लिया, यस और नो? यस सर। ओके फाइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कितने स्टेट वेरिएबल होंगे वो कैसे डिफाइन करेंगे, लेट अस सी। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाए, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी स्टेट वेरिएबल्स वी हैव फॉर गिवन differential equation. So if we have differential equation, first thing always keep in mind we can define a state model with the help of phase variable method. Okay, second thing, we can define number of state variables according to order of differential equation. We can define number of state variables according to order of differential equation. Okay, according to order of differential equation. So can anybody tell me how many state variables we have for given differential equation? 3. Okay, fine. So we have 3 state variables because we have a third order differential equation. So you can say here we have 3 state variables. अब assumption कैसे करना है वो थोड़ा ध्यान से देखना है। डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि इसमें आउटपुट वेरिएबल क्या है। तो ही वेरिएबल है y ऑफ t, सेकेंड u ऑफ t। तो यू नो u ऑफ t इनपुट वेरिएबल होता है, तो यहां पर y ऑफ t क्या है, आउटपुट वेरिएबल, यस और नो? तो आपको मैंने बताया था कि फेज वेरिएबल मेथड में आउटपुट वेरिएबल को हम फर्स्ट स्टेट वेरिएबल एज्यूम करेंगे। सो y ऑफ t को हम क्या एज्यूम करेंगे, फर्स्ट स्टेट वेरिएबल। फर्स्ट स्टेट वेरिएबल मींस x1t, बिकॉज आपको पता है कि स्टेट इक्वेशन में हम स्टेट वेरिएबल को डिफाइन करते हैं x ऑफ t से। दैट्स व्हाई यहां पर हम y ऑफ t को फर्स्ट स्टेट वेरिएबल एज्यूम करेंगे x1t। इतना क्लियर है सबको? इक्वेशन 1 डन। y ऑफ t का जो डेरिवेटिव होगा वो सेकेंड स्टेट वेरिएबल होगा। कैसे होगा? y ऑफ t का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, dy ऑफ t बाई dt। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से, डेरिवेटिव ऑफ x1t, राइट? और आपको मैंने बोला था कि y ऑफ t का जो डेरिवेटिव आएगा उसको सेकेंड स्टेट वेरिएबल एज्यूम करना है। दैट्स व्हाई dy ओवर dt को हम सेकेंड स्टेट वेरिएबल एज्यूम करेंगे। सेकेंड स्टेट वेरिएबल क्या होगा, x2t। सपोज दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। डन, इतना क्लियर है? बट आपने कहा कि 3 स्टेट वेरिएबल्स होंगे, x1, x2, x3। x2 हमने डिफाइन कर लिया, x3 कैसे डिफाइन करना है, लेट अस सी। y ऑफ t का जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा, सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, d स्क्वायर y ऑफ t बाई dt स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से, x2 डॉट, राइट? और हमें सेकेंड डेरिवेटिव को नेक्स्ट स्टेट वेरिएबल एज्यूम करना है। नेक्स्ट स्टेट वेरिएबल क्या होगा, x3t, इक्वेशन थर्ड। इतना सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है, यस और नो? फर्स्ट सेकेंड थर्ड में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ओके, लेकिन अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे उसमें थर्ड डेरिवेटिव भी आया है, लेकिन हम थर्ड डेरिवेटिव को नेक्स्ट स्टेट वेरिएबल एज्यूम नहीं कर सकते, बिकॉज लिमिटेशन क्या है कि 3 ही स्टेट वेरिएबल्स हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो इक्वेशन थर्ड से हम थर्ड डेरिवेटिव को क्या लिख सकते हैं,
डी क्यू बाई टी बाई डी टी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, x3 डॉट इक्वेशन 4th। डन, इतना क्लियर है। आपको फर्स्ट स्टेट इक्वेशन डिफाइन करनी थी x1 डॉट के लिए, तो यहां पर फर्स्ट स्टेट इक्वेशन क्या होगी, जो आपने सेकेंड इक्वेशन लिखी है, दिस इज माय फर्स्ट स्टेट इक्वेशन, x1 डॉट इक्वल टू x2, दिस इज माय फर्स्ट स्टेट इक्वेशन। डन। सेकेंड स्टेट इक्वेशन होगी x2 डॉट के लिए। ओके, जो आपने थर्ड इक्वेशन लिखी है x2 डॉट इक्वल टू x3, दिस इज माय सेकेंड स्टेट इक्वेशन, दिस इज माय सेकेंड स्टेट इक्वेशन। और थर्ड स्टेट इक्वेशन हम लिखेंगे x3 डॉट के लिए। और थर्ड स्टेट इक्वेशन हम कहां से लिख सकते हैं, फोर्थ के अकॉर्डिंग तो हम लिख नहीं सकते, बिकॉज आपको मैंने बोला था कि स्टेट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में स्टेट वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा, राइट हैंड साइड में स्टेट वेरिएबल्स होंगे। तो फोर्थ के अकॉर्डिंग हम थर्ड स्टेट इक्वेशन नहीं लिख सकते, दैट्स व्हाई थर्ड स्टेट इक्वेशन हम लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग। सो लेट अस सी हाउ वी कैन राइट थर्ड स्टेट इक्वेशन। So here we can write a third state equation with the help of given differential equation. अब उसमें आपको चेंजेस करने हैं। चेंजेस क्या करने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव फर्स्ट थर्ड डेरिवेटिव डी क्यू बाई ओवर डी टी क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं फोर्थ के अकॉर्डिंग, x3 डॉट। डन। उसके बाद था +6 टी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं थर्ड के अकॉर्डिंग, x3। ओके, नेक्स्ट क्या था 5 डी बाई डी टी, डी बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं सेकेंड के अकॉर्डिंग, x2। तो वी हैव 5x2। डन। उसके बाद क्या था बाई ऑफ टी, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम बाई ऑफ टी को क्या लिख सकते हैं, x1t। ओके, राइट हैंड साइड सेम रहेगा, मींस ut सेम रहेगा। अब आप यहां से x3 डॉट लिख सकते हैं, तो x3 डॉट की वैल्यू कितनी आएगी, x3 डॉट इक्वल टू कितना, -x1t माइनस 5 x2t माइनस 6 x3t प्लस ut। ओके, सो दिस इज माय थर्ड स्टेट इक्वेशन। आपको पता था कि 3 स्टेट वेरिएबल्स थे, दैट्स व्हाई हियर वी हैव 3 स्टेट इक्वेशंस। तो जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, जो आप अजम्पशन करेंगे 2 इक्वेशंस तो वहां से आ जाएंगी, थर्ड या फिर लास्ट स्टेट इक्वेशन आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखनी है। ओके, इतना क्लियर है, तीनों स्टेट इक्वेशन सबको क्लियर है, तीनों स्टेट इक्वेशन सबको क्लियर है। हाँ जी, तीनों स्टेट इक्वेशन सभी को क्लियर है, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब आपको यहां पर आउटपुट इक्वेशन अगर सर्किट होता तो हम वहां से देख सकते थे। यहां पर हमें आउटपुट इक्वेशन अजम्पशन की नीड नहीं है, ऑलरेडी आपने अजम्पशन किया हुआ है। आपको पता है कि स्टेट मॉडल में आउटपुट वेरिएबल क्या होता है, y ऑफ t। फर्स्ट इक्वेशन आपने क्या लिखी है, y ऑफ t इक्वल टू x1t, दैट्स वाई फर्स्ट इक्वेशन किसको डिफाइन करेगी, आउटपुट इक्वेशन को। तो यहां पर आउटपुट इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन y ऑफ t इक्वल टू x1t। तो दिस इज माय आउटपुट इक्वेशन। जो भी स्टेट इक्वेशंस आई हैं उनको आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लीजिए, जो आउटपुट इक्वेशन आई है उसको आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लीजिए। आपके पास में 3 स्टेट इक्वेशंस थी,
फर्स्ट x1 डॉट के लिए, सेकंड x2 डॉट के लिए, थर्ड x3 डॉट के लिए। तीनों को आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लीजिए। सो वी हैव x1 डॉट, ओके, x2 डॉट, x3 डॉट, ओके, तीनों को आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लीजिए इक्वल टू, ओके। मैट्रिक्स ए का साइज कितना होगा? अगर तीन स्टेट इक्वेशंस हैं तो आपके पास में तीन वेरिएबल्स हैं x1, x2, x3, दैट्स व्हाई मैट्रिक्स ए का साइज कितना होगा? 3 क्रॉस 3, ओके, बिकॉज वी हैव 3 स्टेट वेरिएबल्स, फर्स्ट x1, सेकंड x2, थर्ड x3। डन, इतना क्लियर है? अब इक्वेशन 1 को ध्यान से देखिए। इक्वेशन 1 क्या थी? x1 डॉट इक्वल टू x2। इसमें x1 का कोफिशिएंट क्या है? 0, x2 का कोफिशिएंट क्या है? 1, x3 का कोफिशिएंट क्या है? 0। सेकेंड स्टेट इक्वेशन क्या थी? x2 डॉट इक्वल टू x3। तो यहां पर x1 का कोफिशिएंट 0, x2 का कोफिशिएंट 0, x3 का कोफिशिएंट 1। थर्ड स्टेट इक्वेशन क्या लिखी थी? x3 डॉट इक्वल टू माइनस x1 माइनस 5x2 माइनस 6x3 प्लस ut। तो यहां पर x1 का कोफिशिएंट क्या है? -1, x2 का कोफिशिएंट -5, x3 का कोफिशिएंट -6, साथ में प्लस ut भी था। फर्स्ट स्टेट इक्वेशन में ut नहीं था, सेकंड स्टेट इक्वेशन में ut नहीं था, थर्ड स्टेट इक्वेशन में ut है। इसका मतलब आपको मैट्रिक्स बी भी मिलेगी, ओके। तो मैट्रिक्स बी हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट स्टेट इक्वेशन में ut का कोफिशिएंट 0 था, सेकेंड स्टेट इक्वेशन में ut का कोफिशिएंट 0 था, और थर्ड स्टेट इक्वेशन में ut का कोफिशिएंट 1 है। सो वी हैव कॉलम मैट्रिक्स ऑफ साइज 3 क्रॉस 1। और आपको पता है इनपुट वेरिएबल क्या होगा? ut, ओके। सो दिस इज माय स्टेट इक्वेशन फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, ओके। तो यहां से हम मैट्रिक्स ए लिख सकते हैं, दिस इज माय मैट्रिक्स ए, ओके, एंड दिस इज माय मैट्रिक्स बी। डन? यस और नो? इतना ठीक है? यस और नो? यस सर। अब आपको आउटपुट इक्वेशन पता है? आउटपुट इक्वेशन क्या थी? y ऑफ t इक्वल टू x1t। तो आउटपुट इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वी हैव y ऑफ t इक्वल टू, ओके। आउटपुट इक्वेशन में वेरिएबल्स सेम ही रहेंगे, स्टेट वेरिएबल्स ही तो होंगे, x1, x2, x3। तो आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लीजिए, x1t, x2t, x3t, और हमेशा जो मैट्रिक्स सी आएगी वो रो मैट्रिक्स होगी, ओके। तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं y ऑफ t के लिए, ओके। आउटपुट इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट 1 है, x2 का कोफिशिएंट 0, x3 का कोफिशिएंट 0। तो दिस इज माय मैट्रिक्स सी। आउटपुट इक्वेशन में ut नहीं है, इसीलिए मैट्रिक्स D की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो दिस इज माय मैट्रिक्स D, ओके। सो y of t equation will define output equation in matrix form. Output equation in a matrix form. अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं, we can say we have a state model in matrix form. अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं, we can say we have a state model in a matrix form. Okay, so with the help of phase variable method, we can define a state model for differential equation. With the help of phase variable method, we can define a state model for differential equation. ठीक है? तो सभी को phase variable method क्लियर है? सभी को phase variable method क्लियर है? जल्दी से बताइए, सभी को फेज वेरिएबल मेथड क्लियर है? यस और नो? यस और नो? यस सर। बाकी लोग भी बताइए। ओके, फेज वेरिएबल मेथड सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है, अजम्पशन है बस आपको ये ध्यान रखना है कि अजम्पशन किस तरीके से करना है। अननेसेसरी अजम्पशन करना नहीं है,
सबसे पहले आप स्टेट वेरिएबल्स डिफाइन कर लो विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद केवल अजम्पशन है, इतनी कैलकुलेशन भी नहीं है। ठीक, सेम पेज वेरिएबल मेथड है, पेज वेरिएबल मेथड है ट्रांसफर फंक्शन के लिए। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए हम पेज वेरिएबल मेथड के अकॉर्डिंग स्टेट मॉडल कैसे डिफाइन करेंगे, लेट अस सी। ओके, अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन की थी। ओके, अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन की थी। अगर हमारे पास में ट्रांसफर फंक्शन होगा तब हमें स्टेट मॉडल कैसे डिफाइन करना है, लेट अस सी। Okay, so let us consider next example for a transfer function. Suppose we have transfer function t of s equal to 1 upon s cube plus 6 s square plus 10s plus 5. Okay. Question is obtain the state model for given system described by transfer function. Obtain the state model, obtain the state model for given system described by the transfer function. तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है और अगर आपके पास में ट्रांसफर फंक्शन है, वी कैन डिफाइन स्टेट मॉडल विद द हेल्प ऑफ पेज वेरिएबल मेथड। डन, कैसे करेंगे? सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम t ऑफ s को क्या लिखेंगे, इट इज रेशियो ऑफ y ऑफ s टू u ऑफ s, बिकॉज स्टेट मॉडल के अकॉर्डिंग इनपुट क्या था ut, आउटपुट क्या था y ऑफ t। सो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, Laplace transform of output to Laplace transform of input. Fine. So we have t of s equal to y of s to u of s. Value कितनी given है, 1 over s cube plus 6s square plus 10s plus 5। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। So we have y of s into s cube plus 6s square plus 10s plus 5 equal to u of s। ठीक है, डन। अब यहां से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है। ओके, यहां से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है। ओके, अभी हमारे पास इक्वेशन है एस डोमेन में। सो इफ वी कंसिडर inverse Laplace transform of given equation, then we have equation in time domain. Okay, so let us define inverse Laplace transform for both sides of above equation. So we have, बताइए क्या होगा, y of s, s क्यूब का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, बोलिए। नहीं, d क्यूब y of t by dt cube, yes or no, according to differentiation in time domain property of Laplace transform। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड टर्म का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 6 सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ t। सिमिलरली 10s y ऑफ s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 10 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ t। ओके, सिमिलरली 5 बाई ऑफ s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 5 बाई ऑफ t इक्वल टू u ऑफ s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ut। ओके, जस्ट इट इज जस्ट नोटेशन, u ऑफ s जस्ट नोटेशन। ओके, तो u ऑफ s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, u ऑफ t। डन। अब आप इसका स्टेट मॉडल डिफाइन कर सकते हैं। अब सेम बन गया न्यूमेरिकल जैसा हमने प्रीवियस केस में कंसिडर किया था, यस और नो। नाउ वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशन, so it is very easy to write a state model for given differential equation। कैसे, सबसे पहले हम नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। कितने स्टेट वेरिएबल्स होंगे, कितने स्टेट वेरिएबल्स होंगे,
बोलिए 3. So we have 3 state variables. Okay, कौन कौन से? x1t, x2t and x3t. ओके, 3 स्टेट वेरिएबल्स के होंगे बिकॉज वी हैव थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन में आउटपुट वेरिएबल क्या है? y ऑफ t. आपको मैंने बताया था फेज वेरिएबल मेथड में हम आउटपुट वेरिएबल को फर्स्ट स्टेट वेरिएबल एज्यूम करेंगे. सो हियर वी हैव आउटपुट वेरिएबल y ऑफ t. इसको हमें फर्स्ट स्टेट वेरिएबल एज्यूम करना है x1t. y ऑफ t का जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा dy by dt, इसको हमें सेकेंड स्टेट वेरिएबल एज्यूम करना है. लेकिन हम फर्स्ट इक्वेशन से इसको क्या लिख सकते हैं? x1 डॉट. ओके, लेकिन हमें इसको सेकेंड स्टेट वेरिएबल एज्यूम करना है. सेकेंड स्टेट वेरिएबल मींस x2 फंक्शन ऑफ t. सपोज सेकेंड इक्वेशन. ओके, अब जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा y ऑफ t का, उसको थर्ड स्टेट वेरिएबल एज्यूम करना है. सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा y ऑफ t का? डी स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर. इसको हमें सेकेंड स्टेट वेरिएबल, इसको हमें थर्ड स्टेट वेरिएबल एज्यूम करना है. लेकिन सेकेंड इक्वेशन से हम इसको क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x2. ओके, इसको हमें थर्ड स्टेट वेरिएबल एज्यूम करना है x3. दिस इज माय थर्ड इक्वेशन, राइट. लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में थर्ड डेरिवेटिव भी है. तो थर्ड इक्वेशन की हेल्प से हम y ऑफ t के थर्ड डेरिवेटिव को क्या लिख सकते हैं? x3 डॉट. डन. इतना क्लियर है? दिस इज माय फोर्थ इक्वेशन. अब यहां पर आपको दो स्टेट इक्वेशंस ऑलरेडी मिल चुकी है. फर्स्ट स्टेट इक्वेशन क्या है? x1 डॉट इक्वल टू x2. ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट स्टेट इक्वेशन. ओके, सेकेंड स्टेट इक्वेशन क्या है? x2 डॉट इक्वल टू x3. दिस इज माय सेकेंड स्टेट इक्वेशन. ओके, दिस इज माय सेकेंड स्टेट इक्वेशन. आपको थर्ड स्टेट इक्वेशन लिखनी है विद द हेल्प ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. यहां पर आपको आउटपुट इक्वेशन भी मिल चुकी है. जो फर्स्ट इक्वेशन है यही आपकी आउटपुट इक्वेशन है. ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन विल डिफाइन आउटपुट इक्वेशन. डन. तो दो स्टेट इक्वेशंस आपको मिल चुकी हैं. अजम्पशन के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट इक्वेशन मिल चुकी है. अजम्पशन के अकॉर्डिंग आपको थर्ड स्टेट इक्वेशन लिखनी है. तो थर्ड स्टेट इक्वेशन आप लिख सकते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग. ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 to 4 जो आपने अजम्पशन किए हैं 1 to 4, उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंशियल इक्वेशन से थर्ड स्टेट इक्वेशन लिख सकते हैं. ओके, तो थर्ड स्टेट इक्वेशन क्या होगी? x3 कितना? x3 डॉट प्लस क्या था नेक्स्ट टर्म? 6 सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ t. तो इसको लिखेंगे हम 6. और सेकेंड डेरिवेटिव को हम क्या लिख सकते हैं? सेकेंड डेरिवेटिव को हम क्या लिख सकते हैं थर्ड इक्वेशन से? x3t. राइट. ओके, नेक्स्ट क्या था? 10 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ t. इसको हम सेकेंड इक्वेशन से लिख सकते हैं x2. ओके, अगला टर्म था 5 y ऑफ t. तो प्लस 5 y ऑफ t को हम क्या लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से? x1t. ओके, इक्वल टू ut. सो थर्ड इक्वेशन क्या होगी? x3 डॉट इक्वल टू कितना? -5x1. ओके, -10x2. ओके, -6x3 प्लस ut. Okay, so this is my third state equation. Okay, so in starting हमने बोला था कि 3 स्टेट वेरिएबल्स होंगे. दैट्स व्हाई हियर वी हैव 3 स्टेट इक्वेशंस. डन. तीनों स्टेट इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लीजिए. सो वी हैव x1 डॉट, x2 डॉट, x3 डॉट. डन. इक्वल टू
चलिए मैट्रिक्स ए बताइए क्या होगी, मैट्रिक्स ए बताइए क्या होगी। 0 1 0 0 0 1 -5 -10 -6। ओके 0 1 0 0 0 0 1 -5 -10 -6। ओके ओके। और फेज वेरिएबल मेथड के अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स ए आती है उसको हम बुश फॉर्म भी बोलते हैं, BUSH, बुश फॉर्म। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि मैट्रिक्स ए का बुश फॉर्म क्या होगा। तो जो मैट्रिक्स ए आएगी फेज वेरिएबल मेथड के अकॉर्डिंग उसको हम बुश फॉर्म भी बोलते हैं। ओके प्लस, अच्छा मैट्रिक्स बी बताएगा कोई मुझे, मैट्रिक्स बी क्या होगी? 0 0 1। 0 0 1, राइट, 0 0 1। सो दिस इज माय स्टेट इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। चलिए आउटपुट इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। मैट्रिक्स सी बताएगा कोई? 1 0 0। राइट 1 0 0। और वेरिएबल्स वाली मैट्रिक्स में क्या क्या होगा? x1t होगा, x2t होगा, x3t होगा। ओके मैट्रिक्स डी क्या है? जीरो मैट्रिक्स डी क्या है? मैट्रिक्स। 0। ओके ओके। तो दिस इज माई आउटपुट इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। अच्छा मैट्रिक्स डी को हम क्या बोलते थे अगर किसी को याद हो तो? ट्रांसमिशन मैट्रिक्स। ट्रांसमिशन मैट्रिक्स। जनरली ट्रांसमिशन मैट्रिक्स की वैल्यू 0 क्यों है? ट्रांसमिशन के अलावा मैंने और बताया था, मैट्रिक्स डी का दूसरा नाम भी बताया था। ट्रांसमिशन मैट्रिक्स के अलावा मैंने मैट्रिक्स डी का दूसरा नाम भी बताया था, याद करो क्या था उसका नाम? ट्रांसमिशन मैट्रिक्स था और क्या था? इनपुट आउटपुट कपलिंग मैट्रिक्स। इनपुट आउटपुट कपलिंग मैट्रिक्स। So D indicates a direct coupling of input to the output. ओके और ये कंट्रोल सिस्टम में रेयरली होता है, तो इसीलिए जनरली मैट्रिक्स डी की वैल्यू 0 आती है। आपने जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं अभी तक उसमें मैट्रिक्स डी की वैल्यू 0 थी, बिकॉज डी विल डिफाइन input output coupling matrix or transmission matrix, or it indicates a direct coupling of the input to the output. Okay, and it is rarely happen in control system. That's why generally matrix D की value 0 होगी। Okay, डन। तो सभी को ABCD क्लियर है, दोनों मेथड क्लियर है, पेज वेरिएबल मेथड क्लियर है, फिजिकल वेरिएबल मेथड क्लियर है, यस और नो? आप चाहे तो बुक से या फिर नोट्स से एक न्यूमेरिकल और सॉल्व कर लेना फिजिकल वेरिएबल मेथड का, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना आप फेज वेरिएबल मेथड का डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, एक सॉल्व करके देखना ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग। और ऐसा ट्रांसफर फंक्शन लेना जिसमें न्यूमरेटर में भी आपको एस वाले टर्म्स दिए हो। यहां पर हमने जो न्यूमरेटर कंसिडर किया था वो 1 कंसिडर किया था। आप कोई ऐसा एग्जांपल लेना जिसमें न्यूमरेटर में भी एस वाले टर्म्स गिवन हो, ठीक है, और वहां से आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखना या स्टेट मॉडल डिफाइन करके देखना, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप अभी मैं थर्ड का कल भेजूंगा, क्योंकि कल थर्ड का असेसमेंट होगा। कल असेसमेंट केवल मैं 1 आवर का लूंगा, ठीक है ना। यूनिट 4th जो था RH क्राइटेरिया रूट लोकस, उसका असेसमेंट कल है और 1 आवर का है। 4 to 5 में लूंगा 1 आवर का, उसमें 30 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद मैं आपको सारे ऑब्जेक्टिव भेज दूंगा यूनिट 4th के, ठीक है। उसके बाद यूनिट 2nd के ऑब्जेक्टिव आपको भेजने और यूनिट 5th के ऑब्जेक्टिव आपको भेजने, ठीक है। ओके तो नेक्स्ट वीक में आपको मैं दोनों के ऑब्जेक्टिव भेज दूंगा, 2nd के भी और 5th के भी, बिकॉज एक ही वीक मिलेगा। ओके तो एक ही असेसमेंट हो पाएगा, तो 2nd का असेसमेंट ले लेंगे। 5th का असेसमेंट जो होगा वो पीयूटी में कवर हो जाएगा। पीयूटी होगा तो पीयूटी में 1 से 5 तक, यूनिट 1 से यूनिट 5 तक सारे ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो वहां फिर वो कवर हो जाएगा, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, ठीक है। ओके थैंक यू। अगर किसी को नहीं पूछना है देन इट्स ओके।
और आपका जो पीयूटी है वो ऑफलाइन है, ओके, मेक श्योर। एचओडी सर की तरफ से मैसेज आ जाएगा।